اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور انشاءاللہ آج رات 9:30 بجے جو لائیو بیان ہوتا ہے بہت اہم عنوان پر ہوگا، مقصد قربانی۔ کروڑوں جانوروں کو ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، آخر اس قربانی کا مقصد کیا ہے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہندو بھائیوں تک بھی صحیح پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس لیے آج رات اسی چینل پر 9:30 بجے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر پڑوسی ملک سری لنکا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سری لنکا کے پریزیڈنٹ فرار ہو کر مالدیپ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم رانیل وکرم ماسنگے کو قائم مقام پریزیڈنٹ، قائم مقام صدر ایمرجنسی نافذ کر دیا گیا۔ پرتشدد مظاہرے وہاں پر جاری ہے اور ایمرجنسی سری لنکا میں نافذ ہو گئی ہے۔ آنسو گیس بھی مظاہرین پر چھوڑا گیا، جس میں آنسو گیس سے ایک شخص کے دم توڑ دینے کی خبر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نے بدھ کو سری لنکا کا قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا، انہیں وہاں کا صدر مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ کل ایکس پریزیڈنٹ گوٹابایا راجا پکسے ایک فوجی طیارے میں فرار ہو کر بھاگ کر مالدیپ پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں نئے سرے سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سری لنکا میں جو حالات ہوئے تھے صرف اور صرف ان حالات کی وجہ یہی ہے کہ
महंगाई खूब बढ़ती गई। असल मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए धर्म की घटिया किस्म की राजनीति और नफरतें वहाँ पर फैलाई गई, और जो कुछ वहाँ पर हुआ आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारी चीज़ें आज हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में हो रही है। और हम भारत के वफादार होने के नाते, भारत के शुभ चिंतक होने के नाते भारत की हुकूमत को भी लगातार खबरदार कर रहे हैं। और हुकूमत तो सब जानती है, मगर उसको सत्ता की, कुर्सी की लालच है। वो तो सोचती है बस सत्ता मिले, कुर्सी मिले, चाहे मुल्क तबाह हो जाए। लेकिन हम मुल्क वासियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो कुछ श्रीलंका में हुआ और तबाही आई, वैसे ही सब कुछ भारत में हो रहा है। अगर अब भी न जागे तो मुल्क बच नहीं पाएगा। और इनका क्या है, जैसे ये वहाँ के सदर वगैरह सब फरार हो गए हैं, तो ऐसे ही हमारे तो पीएम साहब ने पहले ही खुलकर कह दिया है कि भाइयों बहनों हमारा क्या है, हम तो झोला लेकर चले जाएंगे। तो ये कभी भी झोला लेकर भाग सकते हैं, मुल्क को हमें बचाना होगा। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। खैर ये आपके और दूसरों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, मेरे लिए तो चौंकाने वाली नहीं है। हम तो पहले से ये चीज़ बार बार इशारा कर रहे हैं, और आज यही चीज़ खुद अमेरिका के वाइट हाउस के एक्स साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने एक्सेप्ट करते हुए, एतराफ़ करते हुए ये कहा। क्या है खबर ये कि अमेरिका, यानी इन्होंने भी इस बात को माना कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में बगावतें कराने में मदद करता रहा है। बड़ी खबर है जी हाँ, कि दूसरे मुल्कों में जहाँ भी बगावत होती है और माहौल उस मुल्क का ख़राब होता है और फिर तीसरा बनकर अमेरिका आता है, तो ये सब बदमाशियाँ खुद अमेरिका करवाता है। दूसरे मुल्कों में बगावतें कराने में मदद करता है अमेरिका। और ये मैं नहीं, इस वक्त वाइट हाउस के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने खुद एतराफ़ किया है। कानून साजों के पैनल ने मंगल के रोज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस अम्र का इल्ज़ाम दिया कि इन्होंने तशद्दुद के लिए इश्तियाल अंगेज़ी की थी। जी हाँ, वहीं पर बोल्टन ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने कई मुल्कों में बगावतें कामयाब कराने में मदद की थी। जॉन बोल्टन ने ये बात CNN के साथ 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर होने वाले हमले के सिलसिले में होने वाली समाअत के बाद खुद कही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। खबरें हैं कि इजरायली रहनुमाओं से मुज़ाकरात बातचीत के बाद वो फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। जो बाइडन बुध के रोज़ मशरिक़ वस्ता की अहम यात्रा पर इजराइल पहुंच रहे हैं, जहां वो खलीजी इत्तेहादियों को तेल की पैदावार बढ़ाने समेत दीगर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। यरूशलेम में 2 रोज़ा क़याम के दौरान सदर जो बाइडन इजरायली रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जबकि जुमा के रोज़ यानी आइंदा कल अपने दौरे के आखिरी मरहले पर वो फ़लस्तीन के सदर रहनुमा महमूद अब्बास से भी ग़र्ब उर्दुन में मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अगरचे इजराइल का ये 10वां दौरा है, ताहम इस दौरान वो चंद ऐसी मुलाकातें करने जा रहे हैं जो अपनी नौयत की पहली मुलाकात होंगी। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि खबरें ये भी आ रही है कि इजराइल ने 1500 इजाफी एक्स्ट्रा फ़लस्तीनी मजदूरों को वर्क परमिट देने का फैसला किया है। गज़ा की 23 लाख की ज़ेरे मुहासरा आबादी में से अब 15,500 फ़लस्तीनी मजदूरी कर सकेंगे। इजराइल ने गज़ा के रिहायशी फ़लस्तीनियों के लिए वर्क परमिट बढ़ाने का फैसला किया। ये फैसला अमरीकी सदर जो बाइडन की आमद से 1 रोज़ पहले किया गया, ताकि फ़लस्तीनियों के हवाले से इजरायली हुकूमत अपनी सोच का इजहार कर सके। यानी इसमें भी इजराइल की मक्कारी छुपी हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर एक और है मेरी निगाहों के सामने, जो चाइना से आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि चाइना ने तमाम एशियन कंट्रीज़ को और एशियाई अक़वाम को वार्निंग देते हुए, इंतबाह देते हुए, ख़बरदार करते हुए ये कहा है कि आलमी ताकतों का
मोहरा बनने से गुरेज करें, बचें। चीन ने खबरदार किया है कि एशियाई अक़वाम आलमी ताकतों का मोहरा बनने से बचें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान सेक्रेटरीट में एक खिताब में चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ख़ित्ते में कई कंट्रीज़ पर दबाव है कि वो जानिबदारी का मुजाहरा करें या किसी एक ताकत की हिमायत करें, समर्थन करें, सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि एक ऐसे खित्ते को जिसे जियोपॉलिटिकल अवामिल की तरफ से तश्कील नौ का ख़तरा लायक हो, जोग्राफियाई सियासी हिसाब किताब और किसी बड़ी ताकत की दुश्मनी और ज़बरदस्ती से शतरंज के मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होने से बचना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद ये भी कहा कि हमारे खित्ते का मुस्तक़बिल हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। यानी चीन ने तमाम एशियाई कंट्रीज़ को ख़बरदार करते हुए कहा है कि आप किसी भी इंटरनेशनल ताकत का मोहरा बनने से अपने आप को बचाएं। नाज़रीन, इस वक्त पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका की फ़ौजें थी, बरतानवी फ़ौजें थी, तो ख़बरें आ रही है कि अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान बरतानवी फ़ौज के हाथों 54 शहरियों के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है, इंकशाफ हुआ है कि बरतानिया की एलर्ट स्पेशल एयर सर्विस SAS कोर के कमांडोज ने अफ़गानिस्तान में दौरान क़याम 54 अफ़गानिस्तानी शहरियों को मशकूक हालत में कत्ल किया है, लेकिन आला फ़ौजी हुक्काम ने इससे आगाह होने के बावजूद इसे छुपाया है। डॉन अखबार में शाया खबर रसा इदारे AFP के रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल तक जारी रहने वाली तहकीकात में इंकशाफ किया गया कि तवील जंग के दौरान रात गए छापों में बरतानवी फ़ौजियों की जानिब से गैर मुसल्ला अफ़गान मर्दों को आए रोज़ गोली मारकर हलाक किया जाता था और उनकी लाशों पर हथियार रख दिए जाते थे ताकि जराइम का जवाज़ पेश किया जा सके। यानी बरतानवी फ़ौजों ने ये आतंकवाद अफ़गानिस्तान में किया था और किया है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।